Hello friends, today we are going to discuss about properties of ionic compounds. Earlier we discussed what are ionic compounds, how they form, what are the features of ionic compound. Now we discuss about the properties by which an ionic compound can be discovered. Now we know that ionic compounds are the strong electrostatic force of attraction. Ionic compounds formed by strong electrostatic force of attraction between opposite ions or charged ions like cation and anion. When strongly the electrostatic force of attraction occurs between two oppositely charged ions, they form ionic compound. Like a positive charge ion and a negative charge ion, they combine together to form ionic compounds. In this video we are trying to differentiate with different properties of ionic compound. Like the four properties which I mentioned here are: the first one is physical state, how the ionic compounds occurs in physical state. Mostly they are in solid form. So physically they are very hard substance because their force of attraction between the ions are very much. So they produce a hard compound or hard bond between the two ions, between the two oppositely charged ions. The crystal of compounds are different in their shape. These compounds which are in form of solid, the crystals of they are crystalline in nature, and the crystals of these compounds are differ by their shape and size because of the agreement between the attraction, the agreement between the channel of individual ions varies. This is called by the process called crystal lattice. Crystal lattice, it is the regular three-dimensional arrangement or spatial arrangement of atoms in a particular ion, in a particular compound. यहाँ हम बात कर रहे हैं आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज की। तो हमें पता है कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो किसी दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। लाइक कैटायन और एनायन। ये कैटायन क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन निगेटिवली चार्ज। ये दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं और आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक आयोनिक कंपाउंड की। तो पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। अधिकतर जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं क्योंकि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स इन कंपाउंड्स में होते हैं वो हार्ड होते हैं। दूसरी चीज, इनका जो हार्ड होने के बाद जो स्ट्रक्चर है आपस में वो वेरी करता है बाय शेप एंड साइज, क्योंकि जो अंदर के जो आयंस है उनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, वो वेरी करता है और वो वेरी करता है बाय क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है या स्पेशल अरेंजमेंट है। कितना स्पेस आयंस के बीच में होगा और ये 3D में है। और 3D में जो अरेंजमेंट है क्रिस्टल लैटिस, ये डिफाइन करता है कि कैसे और क्या साइज होगा किसी पर्टिकुलर आयोनिक कंपाउंड का। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Melting and boiling point of a solid substance, as we studied in solid, liquid and gas, that melting and boiling point of a solid substance is very much high, and those which are formed by ionic bonds, the ionic compounds are having very high melting and boiling point because the intermolecular space or intercharged ion space is very less and the force of attraction is very high, so it requires much energy or much higher temperature to break the bonds and to convert from solid to liquid or gas.
So they requires very high temperature to melt a particular ionic compound. The next we will discuss about solubility. Almost all the ionic compounds are soluble in water, and this solubility occurs because in water they form this association. The bonds, the charged ions separated. The water is separating charged ions, and the process is called disassociation. मतलब जो ये आपस में बॉन्डिंग इन्होंने कर रखी है, सॉल्युबिलिटी में ये वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये सॉल्युबल होने के बाद हाइड्रेटेड आयंस बनाते हैं जिसको हम डिसएसोसिएशन कहते हैं। एक बड़े कंपाउंड का दो डिफरेंट पार्ट्स में अपोजिटली चार्ज आयंस के रूप में टूटना, दिस इज कॉल्ड डिसएसोसिएशन। शब्द से पता चल रहा है कि डिसएसोसिएट मतलब एसोसिएट मतलब एक साथ होना, और डिसएसोसिएट मतलब अलग अलग होना। जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम और क्लोराइड की, Na+Cl-, अगर हम इसे वाटर के साथ सॉल्युबल करते हैं तो ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव चार्ज, Cl- चार्ज, and they are separated and called hydrated ions. क्योंकि यहाँ पर एक साथ जो बॉन्डिंग थी इनके बीच की उसको हाइड्रेट कर दिया गया, उसके अंदर वाटर को सॉल्युबल कर दिया गया, इसलिए ये डिसएसोसिएशन है। द लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जैसे हमें पता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब एक साथ कंबाइन होकर के आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सॉलिड फॉर्म में थे। किसमें थे, हमें पता है कि जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो सॉलिड होंगे, लेकिन अगर ये सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किए जाएं तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी या गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं, क्योंकि क्या चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हमें चाहिए होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जरूरी है। सॉलिड में कोई मोशन नहीं हो सकता, इसलिए इन लिक्विड स्टेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड दे आर very good electrical conductance because they are in molten state and the flow of electron can be possible and which shows electrical behavior. These are the four physical properties which we discussed. ये चार physical property थी जिनके हमने अभी डिस्कशन किया। पहला था physical state, दूसरा melting और boiling point, तीसरा solubility और चौथा electrical conductivity। physical state में अधिकतर सॉलिड फॉर्म या हार्ड पाए जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है आयोनिक कंपाउंड्स की, सॉल्युबिलिटी आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और चौथा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये गुड कंडक्टर होते हैं इन मॉल्टन स्टेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।